Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 243, question number 7. Ganesh and Shankar are partners sharing profit and losses in ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under. Partners कौन है? गणेश और शंकर. ये लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस क्या है? 3:2. So 3 plus 2, it becomes 5. Whatever is the amount is to be distributed, it should be divided into 5 shares, of which 3 shares belongs to Ganesh, 2 shares belongs to Shankar. On 1st April 2020, they decided to admit Mr. Balu for 1/4 share in future profits. So पहले से पार्टनर्स गणेश और शंकर थे, नया बंदा कौन आ रहा? बालू. The conditions of admission are Balu should bring 75,000 as capital, 40,000 as goodwill. नया बंदा अपने साथ कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा. कैपिटल कितना है? 75,000. गुडविल कितना है? 40,000. द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो ये पहली बार जो नया बंदा गुडविल ला रहा वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स बिजनेस से विथड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज द न्यू थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. Buildings be appreciated by 20%, stock and furniture be depreciated by 5%. ये अपने लिए नया नहीं है. There is an unrecorded liability in respect of workman compensation of 3,000 rupees. ये एक चीज नहीं है जो अपने को सीखने को मिल रही. तो ये प्रॉब्लम में हम एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में सीखेंगे. दूसरा अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस सीखेंगे. Give general entries, necessary ledger accounts and balance sheet of new firm. So without preparing general entries, we'll be preparing ledger accounts and balance sheet of new firm. So here is the solution. What are the accounts that we prepare? Revaluation account, cash account, goodwill account, partners capital account, and then balance sheet. The format for revaluation, cash and goodwill account is date, particulars, JF amount rupees, date, particulars, JF amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the accounts will be taken as revaluation account, cash account, goodwill account. इन तीनों का फॉर्मेट अगर ऐसा ड्रॉ नहीं करना है तो सिंपली विल बी ड्रॉइंग particulars amount rupees, particulars amount rupees. Then the format for partners capital account will be particulars along with the name of the partners. Particulars Ganesh amount rupees, Shankar amount rupees, Balu amount rupees. Particulars Ganesh amount rupees, Shankar amount rupees, Balu amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account will be taken as partners capital account. Then the heading for new balance sheet will be new balance sheet of Ganesh, Shankar and Balu as on 1st April 2020. And the format will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. The adjustment for capital and goodwill will be shown in bank account, and the amount of goodwill which is withdrawn by the business from the business by old partners, even this will be recorded in bank account and partners capital account. So what are the adjustments which are being affected in revaluation account? Revaluation account में क्या आता? ये जो assets और liabilities के values कम ज्यादा हो रहे वो आता. Buildings are to be appreciated by 20%. So here the value of building is given as 1 lakh. So 10% of 1 lakh is 10,000. So 20% will be 20,000. So increase in value of asset will be shown on credit side of revaluation. So revaluation के credit में बताएंगे हम by buildings account 1 lakh into 20 by 100 20,000. अब नई बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे हम इसको? बैलेंस शीट में बिल्डिंग्स 1 lakh plus appreciation 20% 20,000. So 1 lakh plus 20,000 it becomes 1 lakh 20,000. Then after buildings we have an adjustment on furniture and stock to be depreciated by 5%. So the value of furniture is 50,000. 10% of 50,000 is 5,000. 5% will be half of it, which is 2,500. So decrease in the value of asset will be shown on debit side of revaluation. So revaluation के debit में बताएंगे to furniture account 2,500. So this will be shown in balance sheet as on asset side as furniture 50,000 minus depreciation 2,500. So 50 minus 2, 48,000 minus 500, 47,500. Then we also have stock. Stock is also to be depreciated by 5%. The value of stock is 80,000.
10% of 80,000 is 8,000. 5% will be half of it, which will be 4,000. So again, it is decrease in value of asset. So will be shown on debit side of revaluation account as to stock account 80,000 into 500, which is 4,000 rupees. So बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे हम इसको? स्टॉक की वैल्यू 80,000 थी, स्टॉक 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5% which is 4,000. 80,000 minus 4,000, it becomes 76,000. Then we have an adjustment. There is an unrecorded liability in respect of workman compensation of 3,000. वर्कमैन किसको बोलते? अपने पास काम करने वाले लोगों को बोलते. वर्कमैन कंपनसेशन क्या रहता? एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को काम करते वक्त अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ हादसा हो गया तो उन लोगों का मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना रहेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन को एक फंड मेंटेन करना पड़ता है जिसका नाम वर्कमैन कंपनसेशन फंड रहता. तो यहाँ पे जो है ना पुराने पार्टनर्स जो थे वो लोग ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उन लोगों के लिए ये वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 3,000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. अब वो लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. सो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है. सो रिवैल्यूएशन के रूल्स क्या थे? डिक्रीज इन असेट, decrease in asset and increase in liability will be shown on debit side of revaluation. Increase in asset and decrease in liability will be shown on credit side of revaluation. तो अब यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है. सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज टू वर्कमैन कंपनसेशन 3,000. तो पुरानी बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड नहीं करे थे तो नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 rupees. So now we are done with the adjustments of revaluation. So now we'll be balancing revaluation account. तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट में यहाँ तक लिखे थे 2,500, 4,000, 3,000, क्रेडिट में 20,000. So the total on debit side is 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9,500. The total on credit side is 20,000. डेबिट का टोटल 9,500 है, क्रेडिट का टोटल 20,000 है. दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 20,000 ज्यादा है. So on both the sides we'll be writing the total as 20,000, 20,000. Subtracting 9,500 from 20,000, we are left out with an amount of 10,500. 20,000 में से 9,500 माइनस करें तो क्या बच रहे? 10,500 बच रहे. So it is profit and will be transferred to partners capital. So it will be shown as to profit transfer to Ganesh capital account, Shankar capital account. So 10,500 will be divided into 3:2 ratio. So 10,500 into 3 by 5, 10,500 into 2 by 5 for Shankar, 10,500 into 3 by 5 for Ganesh. So 10,500 when divided into 5 shares, the value of each share will be 2,100. 10,500 के अगर 5 हिस्से करें, एक हिस्सा 2,100 का है. अब इसके गणेश के 3 हिस्से हैं तो he'll be getting 6,300. शंकर के 2 हिस्से हैं तो he'll be getting 4,200. नेक्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट. अब यहाँ पे कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्यों? इट इज एन एसेट, ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस. तो जैसे ही कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते, जब पार्टनर्स कैपिटल में जाके बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना. क्यों? इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. तब यहाँ जो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे, इसका अमाउंट हम क्वेश्चन में असेट्स में देखेंगे कैश या बैंक के नाम पे. यहाँ पे कैश 40,000 है. So it will be shown on in cash account on debit side as to balance brought down 40,000. इसका मतलब क्या? नया पार्टनर आने से पहले पुराने पार्टनर्स के पास 40,000 रुपए कैश रखा हुआ है. Then in partners capital account we have shown by balance brought down because it is a liability, all liabilities have credit balance. तो इसका अमाउंट हम क्वेश्चन में कहाँ देखेंगे? लायबिलिटी साइड कैपिटल्स के नाम पे देखेंगे. गणेश कैपिटल 1,50,000, शंकर कैपिटल 75,000. तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बताएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 फॉर गणेश, 75,000 फॉर शंकर. अब कैश अकाउंट का रूल क्या है? पैसा आ रहा डेबिट में लिखना, पैसा जा रहा क्रेडिट में लिखना. तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता, वो बंदा अपने साथ कैपिटल के पैसे लाना, गुडविल के पैसे लाना. तो बालू शुड ब्रिंग 75,000 एज कैपिटल एंड 40,000 एज गुडविल. तो बिजनेस में कैपिटल के 75,000 आ रहे, गुडविल का 40,000 आ रहा. तो इट विल बी शोन एज टू बालू कैपिटल 75,000 एंड टू गुडविल अकाउंट 40,000. नया बंदा आने से पहले 40,000 थे, नया बंदा अपने साथ 75,000 कैपिटल लेके आया, 1,15,000, फिर 40,000 गुडविल के लेके आया, तो अब 1,55,000 हो गया. तो टिल नाउ वी यूज टू बैलेंस इट. अभी तक हम क्या कर रहे थे? बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल और गुडविल लिख देने के बाद टोटल कर दे के दोनों तरफ टोटल 1,55,000 1,55,000 लिख दे के
बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे। बट ये प्रॉब्लम में, क्योंकि अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन है, हम यहाँ पे टाइम बीइंग सिर्फ कैश अकाउंट में टोटल करके रोक देंगे। ये विथड्रॉन का स्टेप हम बाद में करेंगे। देन आफ्टर कैश वी हैव गुडविल अकाउंट। तो जैसे यहाँ पे हम कैश अकाउंट फिल कर दिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल। इसके बाद का टेक्निक क्या था? सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखेंगे, दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखेंगे, हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखेंगे, आज के अकाउंट में कल का नाम लिखे, कल के अकाउंट में आज का नाम लिखेंगे। तो कैश के अकाउंट में बालू कैपिटल का नाम लिखे, बालू कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे। इधर डेबिट में लिखे, उधर क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे हम बाई कैश 75,000। फिर उसी तरह कैश के अकाउंट में हम गुडविल का नाम लिखे थे, कैश के अकाउंट में टू गुडविल 40,000 लिखे थे, गुडविल के अकाउंट में बाई कैश लिखेंगे 40,000। अब नया बंदा अपने साथ जो पैसे ला रहा, कैपिटल और गुडविल, कैपिटल के 75,000 क्या करेंगे? बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। जैसा पुराने पार्टनर्स का पैसा 1,50,000 75,000 बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, उसी तरह नए पार्टनर का कैपिटल 75,000 भी बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर गुडविल का पैसा क्या करेंगे? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब मालूम कर सकते हैं? जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो स्पेसिफाई करा हुआ है। If the new ratio is not specified, we are making an assumption that partners are sacrificing in the ratio of in their old profit sharing ratios. तो हम ये assumption कर रहे हैं कि पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे समझ के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो अब यहाँ पे ये 40,000 जो गुडविल है, ये किस किस को बटेगा? गणेश और शंकर में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 3+2 क्या होते हैं? 5। तो 40,000 के हम अगर 5 हिस्से करें, एक हिस्सा 8,000 का आता, तो गणेश के 3 हिस्से है, सो 3 8 24, हिल बी गेटिंग 24,000। शंकर के 2 हिस्से है, तो 8,000 into 2 he'll be getting 16,000. So it will be recorded as to Ganesh capital account 40,000 into 3/5 24,000, to Shankar capital account 40,000 into 2/5 16,000। अब वापस सेम पॉइंट अप्लाई करेंगे। टॉम के अकाउंट में जेरी का नाम लिखे, जेरी के अकाउंट में टॉम का नाम लिखेंगे। तो गुडविल के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम लिखे, गणेश और शंकर के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखेंगे। उधर 2 में लिखे थे, इधर बाई में लिखेंगे। बाई गुडविल अकाउंट 24,000 फॉर गणेश, 16,000 फॉर शंकर। अब जैसे ही ये गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब वो एडजस्टमेंट देखेंगे। वो एडजस्टमेंट क्या था? द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल के पैसे लाए कौन? न्यू पार्टनर। बांट लिए कौन? ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे ही वो लोग वो अपना अपना शेयर बढ़ गया, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना अपना शेयर बिजनेस से विथड्रॉ कर रहे हैं। सो कैश अकाउंट का रूल क्या था? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना। तब यहाँ पे जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें, गणेश गॉट ए शेयर ऑफ 24,000 एंड शंकर गॉट ए शेयर ऑफ 16,000। तो गणेश जो है ना 24 विड्रॉ करेंगे, शंकर जो है ना 16,000 विड्रॉ करेंगे। तो अब वापस सेम पॉइंट अप्लाई करेंगे। कैश के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम लिखे, गणेश और शंकर के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे। उधर क्रेडिट में लिखे, इधर डेबिट में लिखेंगे। टू कैश अकाउंट गणेश हैज विथड्रॉन 24,000, टू कैश अकाउंट शंकर हैज विथड्रॉन 16,000। अब हम कैश का बैलेंसिंग करेंगे। कैश में जब हम टोटल करे थे, डेबिट साइड 40 + 75 1,15,000 + 40,000 1,55,000। क्रेडिट साइड द टोटल इज 40,000। तो डेबिट का टोटल 1,55,000 है, क्रेडिट का टोटल 40,000 है। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 1,55,000। सो 1,55,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ दी साइड्स। अब ये 1,55,000 में से क्या करेंगे? 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बच रहा? 1,15,000। इट विल बी शोन एज बाई बैलेंस C by D 1,15,000। द सेम विल बी शोन ऑन अपोजिट साइड एज टू बैलेंस B by D 1,15,000। अभी गुडविल का टोटल करेंगे हम। क्रेडिट में 40,000 है, डेबिट में भी 40,000 है। तो अब हम अपने पास क्या था? कैश 1,55,000 था, जिसमें से 40,000 गुडविल का शेयर विथड्रॉ हो गया। तब बैलेंस कितना बचा हुआ है? 1,15,000। तो जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें हम कैश बैलेंस क्या बताएंगे? 1,15,000। नेक्स्ट, आफ्टर गुडविल विल बी शोइंग रिवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू गणेश कैपिटल 6,300, शंकर कैपिटल 4,200 बताए थे।
तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम आया, गणेश और शंकर के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम आएगा। इधर डेबिट में आया, इधर क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6300 फॉर गणेश, 4200 फॉर शंकर। फिर इसके बाद दो चीजें ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं देता। क्या है वो? जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व्स लायबिलिटी में दिया हुआ है 30,000, तो ये रिजर्व्स कौन मेंटेन करे? पुराने पार्टनर्स। तो इसको क्या करना, पुराने पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज करेंगे। तो 30,000 when divided into 5 shares, the value of each share will be for 6,000. Ganesh has 3 shares, so he'll be getting 18,000. Shankar has 2 shares, so he'll be getting 12,000. It will be shown as by general reserves 18,000 for Ganesh, 12,000 for Shankar. दूसरा नाम क्या रहता? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में दिया तो वो पुराने प्रॉफिट्स है, एसेट्स में दिया तो पुराने लॉसेस है, बट ये प्रॉब्लम में अपने को कहीं नहीं दिया। देन आफ्टर जनरल रिजर्व्स विल बी बैलेंसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम गणेश का टोटल करेंगे। 1,50,000 वो बंदा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा था। देन ही गॉट ए शेयर ऑफ 24,000 फ्रॉम गुडविल, 18,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व्स एंड 6,300 फ्रॉम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। सो हिज टोटल is working out to be 1,98,300 on credit side, and he has withdrawn a sum of 24,000 of goodwill. तो डेबिट का टोटल 24,000 है, क्रेडिट का टोटल 1,98,300 है। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 1,98,300। So 1,98,300 will be recorded on both the sides of Ganesh account. अब ये 1,98,300 में से क्या हुआ? 24,000 गुडविल का अमाउंट विथड्रॉ हो गया। तो अब गणेश के पास क्या कैपिटल बैलेंस क्या बचेगा? 1,74,300, which will be shown as 2 balance C by D, and the same will be shown on opposite side as by balance B by D, 1,74,300. उसी तरह शंकर का इन्वेस्टमेंट क्या था? 75,000. He got a share of 16,000 from goodwill, 12,000 from general reserves, 4,200 from revaluation profit. So his capital amount is working out to be 1,07,200. अब इसमें से ये बंदा क्या करा? ये बंदे को जो 16,000 गुडविल मिले थे, ये बंदा वो पैसे विथड्रॉ कर लिया। तब ये बंदे के पास क्या बचेंगे? 91,200 बचेंगे। तो दोनों तरफ टोटल लिखेंगे हम। शंकर के लिए 1,07,200, 1,07,200, जिसमें से 16,000 विथड्रॉ कर लिए तो क्या बचे? 91,200। इसको लिखेंगे टू बैलेंस सी बडी 91,200। द सेम विल बी शोन ऑन अपोजिट साइड एज बाय बैलेंस बी बडी 91,200। बालू का कैपिटल है 75,000, तो दोनों तरफ लिखेंगे 75,000, 75,000, एंड विल बी बैलेंस्ड एज टू बैलेंस सी बाई डी 75,000। द सेम विल बी शोन ऑन अपोजिट साइड एज बाय बैलेंस बी बाई डी 75,000। Now coming to new balance sheet, the heading will be taken as new balance sheet of गणेश, शंकर एंड बालू एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैपिटल्स बताएंगे। गणेश का कैपिटल कितना था? 1,74,300 बचा हुआ था। शंकर का 91,200 बचा हुआ था। बालू का 75,000। तो ये तीनों वैल्यूज कैपिटल्स में बताएंगे। गणेश कैपिटल 1,74,300, शंकर कैपिटल 91,200, बालू कैपिटल 75,000। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? कैपिटल्स में लायबिलिटीज चेक, कैपिटल्स लिख देने के बाद लायबिलिटीज चेक करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, इसको हम कुछ नहीं करें तो नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जैसा है वैसा बताएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000। देन वी हैव बिल्स पेबल 60,000, इसको भी हम कुछ नहीं करें तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे। बिल्स पेबल 60,000। देन वी हैव बैंक लोन 40,000, इसको भी हम कुछ नहीं करें तो जैसा है वैसा बताएंगे नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। बैंक लोन 40,000। देन आफ्टर बैंक लोन वी हैव जनरल रिजर्व 30,000, ये पैसा हम बांट के खत्म कर दिए तो ये चीज दोबारा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में नहीं बताएंगे। कैपिटल अमाउंट ये पुराने थे, हम नए बता दिए। फिर इसमें एक और लायबिलिटी क्या थी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 3,000, इसको हम नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बता देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन 3,000। So now we are done with all the items on liability side. Now let us have a look of the items of assets. Assets में कैश कितना था? 40,000। ये नया बंदा आने से पहले का अमाउंट था। फिर नया बंदा आने के बाद क्या हो गया? 75,000 कैपिटल के पैसे आए, 40,000 गुडविल के पैसे आए, तो टोटल कैश बैलेंस कितना हो गया? 1,55,000, जिसमें से 40,000 गुडविल का अमाउंट विथड्रॉ हो गया। तब कैश बैलेंस कितना बचा हुआ है? 1,15,000। सो इन न्यू बैलेंस शीट कैश बैलेंस विल बी शोन एज 1,15,000। फिर कैश के बाद अगली चीज क्या है? बिल्स रिसीवेबल 45,000, इसको हम कुछ भी नहीं करें तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे। बिल्स रिसीवेबल 45,000। देन वी हैव सन्ड्री डेप्टार्स 90,000, इस पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं था तो इसको भी नई बैलेंस शीट के एसेट्स में जैसा है वैसा बताएंगे।
sundry debtors 90,000. Then we have stock 80,000 जिस पे अपने को 5% depreciation था, तो stock 80,000 minus depreciation 5% 4,000, 80 minus 4 it becomes 76,000. Then stock के बाद क्या है, फर्नीचर 50,000, तो इसको भी एडजस्टमेंट था, सो इट विल बी शोन एज फर्नीचर 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5% 2,500, 50 minus 2 48 minus 500 47,500. देन फर्नीचर के बाद वी हैव बिल्डिंग्स 1 लाख जिस पे अपने को 20% अप्रिसिएशन था, सो बिल्डिंग 1 लाख प्लस अप्रिसिएशन 20% विच इज 20,000, so 1 lakh plus 20,000 it becomes 1,20,000. Now doing the total on both the sides, the total on liability side is 4,93,500 as well as the total on asset side is 4,93,500. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.